Hello everyone, once again I welcome you all in the new session of chemistry class having a topic surface chemistry. This is the third session of surface chemistry. Till now we have discussed and we have learnt about what is adsorption, what is absorption, the difference between these two, then types of adsorptions, positive and negative adsorptions, and physical and chemical adsorptions. This thing we have already discussed. Today we are going to start a new topic, that is adsorption of gases on solids. Here gas is the adsorbate and solid is the adsorbent. So what are the factors on which this adsorption of gas on solid depends? This is our main focus of today's class. The adsorption of gas on solid depends upon following factors. Means there are 3, 4, 5 different factors which are responsible for the adsorption of a gas on solid. You can think of that few gas get adsorbed to a greater extent, few at a different extent. What can be the role of pressure? What can be the role of temperature? What can be the role of the nature of the gas? What can be the role of surface area? So all these factors we are going to discuss in today's topic. First factor here we are going to start with is effect of nature of gas. यानी गैस किस टाइप की है, क्योंकि हमें पता है गैसेस के नेचर अलग अलग होते हैं, गैसेस की जो इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द effect of nature of gas on for the adsorption. We can divide the gases into two categories. One, the gases which get easily liquefied. Second, the gases which are liquefied with difficulty, means which are permanent gases. So we'll take these two topics or these 2 points into consideration. Easily liquefiable gases like ammonia, HCl, carbon dioxide, chlorine, etc. are adsorbed to a greater extent than permanent gases like O2, H2, N2, like this. Now what could be the reason? As I mentioned you earlier, force of attraction. The gases which are permanent gases have low critical temperature. I'll take this topic later on. The permanent gases have low critical temperature. So in them there is weak van der Waals forces which exist between the gas and the solid, gas and the adsorbent. Whereas easily liquefiable gases have high critical temperature. So there is a stronger force of attraction between the gas and the solid. Now I will give you a little bit idea about critical temperature. This critical temperature topic must have been discussed in class 11th. Not must have, it is being discussed in class 11th, chapter states of matter, topic liquefaction of gases. Now first thing is, what is critical temperature? It is represented by the symbol Tc and it is defined as a temperature above which a gas cannot be liquefied by applying pressure. यानी कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो वो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती, चाहे कितना मर्जी प्रेशर लगा लो. और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम प्रेशर होगा तो वो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी बाय अप्लाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर. नाउ दिस क्रिटिकल टेम्परेचर गिव्स एन आइडिया about intermolecular forces between the gas molecules. Greater is the critical temperature of a gas, greater will be the magnitude of intermolecular forces. जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं. और जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है वो
मुश्किल से लिक्विफाई होती हैं, मतलब उनके बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होता है। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ मैं, 11th की बुक में था, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, हाई इन द सेंस 30 के लगभग अप्रोक्सीमेटली, नॉट परफेक्ट वैल्यू। तो अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होगा तो CO2 को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते बाय अप्लाइंग प्रेशर, और अगर उससे कम टेम्परेचर होगा तो CO2 गैस लिक्विफाई हो जाएगी बाय अप्लाइंग प्रेशर। सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि हर गैस हर एड्सॉर्बेंट पर इक्वल एक्सटेंट तक एड्सॉर्ब हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट ऑल्सो। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, क्लोरीन, these gases are more easily absorbed on activated charcoal, यानी ज़्यादा एक्सटेंट तक एड्सॉर्ब होती हैं, जबकि परमानेंट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these are more easily absorbed या absorbed to a greater extent on finely divided transition metals like nickel, platinum, palladium and cobalt. So we can say that for CO2 HCl, activated charcoal is a good adsorbent. For hydrogen, oxygen, nitrogen, nickel, platinum, palladium are good adsorbents. So the nature of adsorbent also plays very important role in the extent of adsorption. Third factor is specific area of solid that is adsorbent. अब ये बात तो अभी तक आपको क्लियर हो चुकी होगी कि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, तो जो सरफेस एरिया है वो डिसाइड करेगा कितना एड्सॉर्प्शन होगा। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे कह सकते हैं, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन, और जितना कम सरफेस एरिया उतना कम एड्सॉर्प्शन। सो वी कैन से दैट इट इज़ डिफाइंड एज, स्पेसिफिक एरिया की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, ये अलग से टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एड्सॉर्प्शन पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट। as adsorption is a surface phenomena, so greater the specific area of solid, greater will be extent of adsorption. So we can say that, or we can give an example, porous or finely divided solids have greater extent of adsorption, क्योंकि पोरस में पोर्स होंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर हमने 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट लिया, 1 ग्राम सॉलिड लिया, मान लीजिए हमने 1 ग्राम कोल लिया, या हमने ले लिया चारकोल, 1 ग्राम ले लिया, अगर यही चारकोल लम्प की फॉर्म में हो तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, और अगर इसी 1 ग्राम चारकोल को हम पाउडर कर दें, फाइनली डिवाइडेड कर दें, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, लंप की फॉर्म में, सपोज मैंने इसे क्यूब की फॉर्म में ले लिया तो इसका सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन इसी को मैं छोटे 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 पीसेस में डिवाइड कर दूंगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसमें एड्सॉर्प्शन ज़्यादा है और इसमें उसके मुकाबले में एड्सॉर्प्शन कम। तो यहाँ पर इसका स्पेसिफिक एरिया कम होगा और यहाँ पर इसका स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा होगा। Now fourth factor for adsorption of gas on solid adsorbent is effect of pressure of gas. हम जनरली समझ सकते हैं, क्योंकि गैस को एड्सॉर्ब होना है तो गैस का प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये देखते हैं हम लोग कि जैसे जैसे हम प्रेशर गैस का बढ़ाएंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ते जाता है एक पर्टिकुलर लेवल तक, और उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। अब इसी चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस जनरली इंक्रीजेस with increase in pressure at constant temperature. Temperature should remain constant. तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि प्रेशर इंक्रीज करने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करता है।
अब पॉइंट है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। एक्स, लेट एक्स इज मास ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब्ड, यानी कितना एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो गया वो है एक्स, और एम है स्मॉल एम, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, जिस पर के वो एक्स अमाउंट का एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो रहा है। So the ratio between x and m, that is x upon m, it is known as extent of adsorption. It can also be defined as quantity of gas adsorbed by unit mass of adsorbent at the state of equilibrium. यानी कि और ज़्यादा एड्सॉर्प्शन न हो, एक ऐसी स्टेज आए तब तक जितना एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो गया हो, जितने मास ऑफ एड्सॉर्बेंट पर उसका जो रेशियो होगा उसे हम कहेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं, और वो ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट करते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट इज एक्स अपॉन एम, एंड प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म इसीलिए है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये ग्राफ यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ग्राफ को ध्यान से देखें। वाई एक्सिस पर हमने लिया है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्स अपॉन एम, और एक्स एक्सिस पर हमने लिया है प्रेशर। इस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ को आप देखें, एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, बिल्कुल कोई स्टीप इंक्रीज नहीं है, एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, इस तरीके से जा रहा है, ये जाते आ रहा है। यहाँ से जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और इस प्रेशर पर आकर के, इसके कोरस्पोंडिंग प्रेशर आकर के अब ये यहाँ पर जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट, यानी कि ये एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू है कि इस प्रेशर के बाद हम कितना भी प्रेशर इंक्रीज करें, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रेशर को हम पी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। इसकी डेफिनेशन है, द प्रेशर एट विच द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर। अब ये अलग अलग गैसेस के लिए सैचुरेशन प्रेशर अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग गैसेस का नेचर अलग होता है। अलग अलग गैसेस अलग अलग टाइप की फोर्सेस बनाती हैं एड्सॉर्बेंट के साथ। कोई वैन डर वाल्स फोर्स बनाएगी, कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाएगी, कोई कोवलेंट बॉन्ड के मैग्नीट्यूड की फोर्स बनाएगी, एंड सो ऑन। So that it depends upon the nature of bond formed between the gas and the adsorbent. This graph can be divided into three categories. 3 पोर्शन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक लो प्रेशर पे, एक इंटरमीडिएट प्रेशर पर, और एक हाई प्रेशर पर। The adsorption isotherm can be divided into 3 categories. यहाँ पे देखें सब लोग, ये लो टेम्परेचर पे फर्स्ट, वेरी हाई प्रेशर पे सेकेंड, और इंटरमीडिएट प्रेशर पे थर्ड। अब इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। एट लो प्रेशर, यहाँ पर वी कैन सी दैट इट इज अप्रॉक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो वी कैन से दैट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। पी टू द पावर 1 ले लिया मैंने, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इट विल बी एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू k into p to the power 1, where k is the constant of proportionality. At high pressure, जहाँ पे वो पैरेलल हो गया था, यहाँ पर सेकेंड पोर्शन, एट हाई प्रेशर x upon m is proportional to p to the power 0. p to the power 0 means it will be independent of pressure. Extent of adsorption is independent to pressure, and we can say x upon m is equal to k p to the power 0. So we can conclude that x upon m means extent of adsorption at low pressure is directly proportional, while at high pressure independent of pressure. Very important thing to be mentioned. Now third portion of the graph, that is at an intermediate pressure.
x upon m, that is extent of adsorption, is proportional to p to the power 1 upon n, where n is greater than 1. इट मीन्स ये जो फैक्टर है 1 अपॉन n, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. 0 आ गया था हाई प्रेशर पर, 1 आ गया था लो प्रेशर पर, और इंटरमीडिएट प्रेशर में 1 अपॉन n, यानी ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी. और हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. x अपॉन m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों तरफ लॉग ले लें बेटा, तो ये हो जाएगा log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p. इस इक्वेशन का नाम होता है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. फ्रेंडलिच, FREUNDLICH, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. अब हम इस इक्वेशन को log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p को हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं. y इज इक्वल टू mx प्लस c. मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे और बाय वाले याद कर लें. दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. It is a equation of straight line slope intercept form where m is the slope, whereas c is the intercept on y axis. So from this graph means हम इसका एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं where y axis पे आ जाएगा ये log x upon m, x axis पे आ जाएगा log p, और ये स्ट्रेट लाइन होगी और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा 1 अपॉन n इसके इक्वल, और ये होगा यहाँ पर log k. दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. तो इस ग्राफ की हेल्प से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर ये वैल्यू हमें पता है log k इज इक्वल टू पुट कर देंगे और फिर उसका एंटी लॉग निकालेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी. और अगर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लें, स्लोप आप लोग को पता होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी tan थीटा, उसके इक्वल पुट कर देंगे 1 अपॉन n, तो n की वैल्यू आ जाएगी. फॉर अप टू हियर टुडेज क्लास इज ओवर.